Okay, we'll be doing special rudders now. Baki rudders we have done. So special rudder में normally your rudder turns 35 degrees each side. Special rudder ज़्यादा turn करता है. So the first special rudder is your spade rudder. This is that type. So it is like a spade. इसके आगे एक flap होता है. Now to maximize rudder force at high rudder angles, a special rudder which is spade rudder is selected. So the rudder can act as a reaction blade by deflecting propeller outflow. So the deflection of propeller outflow is more because its movable area is your flap plus the main body. So if it is equipped with flap, this can give a better crabbing performance. Crabbing performance means the flap can move more than your rudder. So the effectiveness of the angle to be turned will be more by your flap. Suppose इसको हमने 60 degrees घुमा दिया और ये main body 30 degrees घुमा तो deflection will be 60 degrees. That means you can turn 60 degrees on one side. Normal rudder is 35 degrees on each side. Now disadvantage of this rudder is this has got a very thick profile. The main body is very thick and therefore that can offer some resistance and propulsion resistance also. Plus bigger steering gear will be required here. So a thicker profile results in having a rudder stalk that has to have a large diameter. ये rudder stalk जो है उसका diameter बड़ा हो जाता है क्योंकि पतला rudder stalk में it cannot take that force. So this Becker Marine system uses KSR technology for bigger and faster ships for flap rudder and full spade rudder. इसका आपको मैंने दिखाया था वीडियो. Now the second type of special rudder is a shilling rudder. ये आपको shilling rudder की फोटो दिखाते हैं. ये fish tail टाइप का है. इसका आफ प्रोफाइल जो है थोड़ा फिश के टेल के जैसे. ये तो बोर्ड पे लगा हुआ है. So if I'll show you that fish tail profile, वो इसमें है पीपीटी में. तो ये जो पीछे से ऐसी टेल बनी हुई है फिश टेल. सो दिस इज अ फिश टेल रडर प्रोफाइल. नॉर्मल रडर नहीं है. नॉर्मल रडर यहाँ एंड हो जाएगा बट यहाँ एक्सटेंडेड लेंथ मिलती है जिससे एक्स्ट्रा थ्रस्ट मिलती है. सो दिस इज अ फिश टेल रडर जिसमें ज़्यादा थ्रस्ट मिलेगी. So shilling rudder is also known as fishtail rudder, and there is no flap here, but the trailing edge is formed, जो extra extension जो पीछे में है, like a fish tail, and that accelerates the flow of water and gives a better lift over aft section of the rudder. So with operating angles can be up to 70 degrees. The shilling rudder improves the coast keeping and vessels control characteristics because the lift is more. जो यहाँ है ये shilling rudder में the trailing edge is much bigger. थर्ड वाला हमने इसका वीडियो भी देखा था flap rudder. तो ये the flap rudder is developed by General Flap Rudder Specialist Willie Becker. Consists of blade with trailing edge flap, this one, and that is activated by mechanical or hydraulic system. इसमें hydraulic systems है जो इसमें move करेंगे, and the variable angle of flap gives a function of rudder angle. So this turns 70 degrees on each side, जबकि ये this will turn maximum 35. So effectiveness will be 70 degrees on each side. So flap rudders can give higher lift per rudder angle and 60 to 70 degrees higher maximum lift compared to conventional rudder of similar size or in similar shape and area. But these special rudders cannot be used for speeds more than 7 knots.
When you're giving hard over, you can't go over 7 knots, otherwise the forces will be too much and will break the rudder. So the high balanced area improves maneuvering characteristics at low speed by blocking forward thrust of the propeller. High lift flap rudders are specified for vessels which require better maneuverability than conventional rudder. Conventional rudder 35 degrees पे move करता है each side, but normally हम 30 degrees से ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि 30 डिग्री से ऊपर जाएगा तो lot of forces will come on the engine and that will stop or stall. तो इन चीफ इंजीनियर अगर आपने हार्ड पोर्ट हार्ड स्टार्बोर्ड भी दे दिया तो 28 डिग्री से ऊपर जाने नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि इतना ज़्यादा फोर्सेस आएंगे कि उसका इंजन बंद हो जाएगा. So this is the third kind of special rudder. एक और रडर आता है जहां आप रडर के ऊपर एक ब्लेड लगवा देते. एक तो ये आपका प्रोपेलर है, रडर के ऊपर एक छोटा सा फैन लगाते हो. अब उस फैन लगाने से क्या है कि अगर आपको किक देना है, किक देने की जरूरत ही नहीं है. नॉर्मली हमको मनूवरिंग करना पड़ता है, तो स्टॉप इंजन पे मनूवरिंग हार्ड पोर्ट हार्ड स्टॉपवर्ड नहीं होता है. डेड स्लो हेड देंगे, स्टॉप करेंगे, तो उसमें डेड स्लो हेड देंगे तो अब हमारा मनूवरिंग शुरू हो जाएगा. स्टॉप इंजन रहेगा और अगर हम मूव नहीं कर रहे हैं तो हार्ड पोर्ट हार्ड स्टॉपवर्ड नहीं हो सकता. तो अगर शिप की लंबाई ज़्यादा है एंड यू आर इन टाइट बेसिन, तो आप किक दोगे तो उससे आप जेटी पे मार दोगे या एज पे मार दोगे. तो यू स्टार्ट दिस प्रोपेलर फैन, डू नॉट स्टार्ट दिस, ओनली स्टार्ट दिस, और ये सक्शन इफेक्ट होगा इस पे एंड देन यू कैन गिव योर रडर मूवमेंट. लेकिन अगर आपने इसको भी चालू कर दिया प्रोपेलर को तो ये उड़ जाएगा, ये निकल जाएगा. तो नेवर स्टार्ट द प्रोपेलर एंड दिस टुगेदर. If you want to use that, do not use your propeller that time. So this is Plugger rudder, which is the fourth type. You've got actually many types of special rudders, but अभी हम 3-4 ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे. So Plugger rudder is used when you have a very tight basin. So if you have a ship too large to maneuver in a basin with size constraints, then the ship cannot use its propeller under maneuver. And this situation often arises in case of large ships operating in space constrained by basin or in case of low speed maneuvers. So this rudder has a small auxiliary propeller, छोटा सा propeller जो है इसमें, that is housed within it. It runs by motor and this housing is mounted on the rudder itself. This generates a thrust which is quite small as compared to your main propeller. So that direction is oriented along the rudder, allowing effective maneuver in slow speed conditions. So such rudder can be used in normal conditions also, but then you can't use, if you are using the propeller, you will not use this. So Plugger rudder, Plugger should not be operated. This fan should not be operated when your normal propeller is running. Or when the Plugger is running, the main engine propeller must not be operated simultaneously. Otherwise, your Plugger or this fan will be torn away. ठीक है, तो अब रडर्स आपके हो गए. कोई इसमें क्वेश्चन आपको स्पेशल रडर में कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस यू हैव ऑन स्पेशल रडर? उसके बाद बाकी चीजें करेंगे. कोई क्वेश्चन नहीं है? ये स्पीड रडर है. यहाँ अगर आप देखो ये स्पीड रडर है इस टाइप का, और ये फ्लैप रडर है. So these are all special rudders. अब रडर कैरियर एंड पिंटल्स की बात करते हैं. तो जब स्टीयरिंग फ्लैट में जाओ, स्टीयरिंग रूम में जाओगे तो ये देखोगे ये सारा मूव करता है. जहां आपका टिलर है,
ट्रंचॉन है, गर्डर टू रैम्स है, वेयर डाउन अलाउंसेस है। तो ये बेसिकली डायग्राम इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा आता है, आप लोगों के लिए आता नहीं, लेकिन डीटीएस में है तो करा रहे हैं। तो दिस इज द आई बोल्ट एंड सपोर्ट प्लेट, ये रडर स्टॉक है, देन देयर इज अ की हियर, थ्रस्ट स्प्रिंग इज देयर, साइड चॉक इज देयर, यहाँ भी साइड चॉक लगा हुआ है, एंड दिस इज द टिलर जिससे आपको पता लगे कहाँ पोर्ट शार्पवर्ड मूव करना है। द गर्डर टू रैम्स, वेयर अलाउंसेस, ये चेक करना है कि अगर ये ड्रॉप हो जाता है तो इसको रिपेयर कराना पड़ता है आपको ड्राई डॉक में। Similarly, you have the same this diagram, rudder post is there, eye bolt, key, thrust spring, chocks. यहाँ वेयर डाउन क्लियरेंस चेक करना पड़ता है, ये टिलर है। तो जहाँ रडर पेंटल जाता है वो इस तरह से बुश के अंदर जाता है। बुश से क्या होगा कि लुब्रिकेशन भी रहेगा और रस्ट नहीं लगेगा। तो इस तरह से पेंटल में ये जाता है बुश के अंदर। Now the rudder carrier bearing takes weight of the rudder on a grease lubricated thrust face, because ये पूरा वेट लेता है रडर का और इस पे ग्रीस लगाते हैं सो दैट लुब्रिकेशन रहे। तो रडर स्टॉक क्या होता है? रडर स्टॉक बेसिकली goes from the rudder to the steering gear, और the rudder stock is passed through the rudder trunk। ये रडर ट्रंक भी आपको दिखाते हैं क्या है। ये रडर ट्रंक के थ्रू आपका रडर स्टॉक जाता है। अभी आपको और दिखाते हैं। तो ये रडर स्टॉक है, रडर ट्रंक के थ्रू जाता है और यहाँ ग्लैंड लगाते हैं सो दैट वाटर डजंट एंटर द इंजन। तो इस रडर ट्रंक यहाँ कनेक्टेड होता है रडर पे, और यहाँ से वो जाएगा स्टीयरिंग रूम में थ्रू द रडर ट्रंक। रडर ट्रंक भी आपको और भी दिखाते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ आपका ये रडर स्टॉक होता है, ये वाटर टाइट बनाना पड़ता है इसको, अदरवाइज वाटर विल गो टू द इंजन रूम। तो यहाँ ग्लैंड की पैकिंग लगाती हैं अराउंड द रडर स्टॉक सो दैट इंजन रूम में पानी ना जाए, तो इंजन रूम में पानी चला जाए और फिर वो डूब सकता है। इंजन रूम फ्लड हो गया तो यू कैन सिंक। अच्छा, इंजन रूम में आपको बताया था जो साउंडिंग पाइप्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं? जैसे डेक पे होती है कि वैसी सेम होती है जैसे डेक पे होती है, या अलग टाइप की साउंडिंग पाइप होती है? नहीं, डिफरेंट होता है उसमें। क्या होता है, फर्क क्या है? सो सेल्फ लॉकिंग। सेल्फ लॉकिंग है, उसको पैडल से खोलना पड़ता है। सेल्फ लॉकिंग ये अब डिफरेंट है, तो फिर क्वेश्चन कुछ ओरल में पूछा, ये डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है? आप बोल दिया भाई हाँ डिफरेंट है, आंसर नहीं देना चाहिए कि सेल्फ लॉकिंग है और उसके बाद उसका कैप लगता है। सेल्फ लॉकिंग इसलिए है क्योंकि वो डेक लाइन से नीचे वाला एरिया है, तो डेक लाइन से नीचे वाला एरिया में आपका फ्लडिंग का बहुत चांसेस है। तो गलती से आपका
खुला रह गया पाइप और नीचे इंजन रूम में होल हो गया, तो फिर वो सिंकिंग हो जाएगा ना, तो वो टैंक वैंक में पानी भर जाएगा, फिर सिंक कर जाएगा। इसीलिए सेल्फ लॉकिंग होता है कि जब आप साउंडिंग लोगे वो खुलेगा, आप दबाओगे पैडल, वो खुल गया, उसके बाद जब छोड़ दिया पैडल वो बंद हो जाएगा, उसके बाद कैप लगा दिया। डेक में उसकी जरूरत नहीं है। डेक में इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जो आपके साउंडिंग पाइप्स हैं वो डेक लाइन के ऊपर है। ठीक है, दैट इज रीजन। The support for the bearing is provided by the framing beneath the steering gear deck. Then there is a thicker deck plating. अब ये इतना ज़्यादा important नहीं है, लेकिन सिर्फ देख लो, ध्यान, इतना ज़्यादा ध्यान की जरूरत नहीं है। जहाँ ध्यान होगा वो बताएंगे, उसको ध्यान से करेंगे। टर्न ट्यूब का जो डायग्राम है उसको ध्यान ज़्यादा देना होगा। Now this is a thicker deck plating in the area beneath the carrier bearing and latter is supported on steel chocks, जो आपको बताया था। ये स्टील चॉक्स यहाँ आपको डायग्राम दिखाया था। ये स्टील चॉक्स हैं, यहाँ भी देखो, यहाँ स्टील चॉक्स बने हुए हैं। ये चॉक्स जो बने हैं ना यहाँ, ये स्टील चॉक्स पे सपोर्ट कर रहे हैं इसको। तो पूरा वेट लेगा तो यहाँ इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ एक वाटर टाइट ग्लैंड होगा ताकि यहाँ से पानी ना आए। So the base of the carrier bearing is located by side chocks welded on deck. Carrier may be mechanite. Mechanite basically स्टील का टाइप है जिसमें गन मेटल थ्रस्ट रिंग एंड बुश है। अभी आपको दिखाते हैं। ये गन मेटल, ये जो है इसमें गन मेटल रिंग एंड बुश होता है, ये वाला दिखाया हुआ। सिमिलरली यहाँ भी, यहाँ गन मेटल रिंग एंड बुश है। एक मिनट, थ्रस्ट रिंग जो लिखा हुआ है यहाँ गन मेटल का बनता है, ये थ्रस्ट रिंग है गन मेटल का बनाया हुआ ये। So the carrier bearing components are split as necessary for removal or replacement. उसको हम निकाल सकते हैं ड्राई डॉक में। Screw down lubricators. हैंड लुब्रिकेटर्स वहाँ होते हैं लुब्रिकेशन के लिए, बट ऑटोमेटिक लुब्रिकेटर्स भी होते हैं, बिकॉज सी वाटर वहाँ रहता है तो रस्ट आ जाएगा, तो लुब्रिकेशन इसको चाहिए। इसलिए हमने स्टीयरिंग गियर में देखा होगा लुब्रिकेटर्स लगा के रखे होते हैं। स्टीयरिंग गियर गए हो हैं? स्टीयरिंग गियर में ध्यान दिया है? जहाज चल रहा है तो कैसे मूव करता है सारा, वो सारा मूवमेंट होता है, तो लुब्रिकेशन करना पड़ता है। और इसमें अलग टाइप की ग्रीस होती है, दैट शुड बी वाटर रेजिस्टेंट। कैल्शियम सोप बेस्ड विद ग्राफाइट, क्योंकि वाटर के कंटैक्ट में है, तो अगर वाटर रेजिस्टेंट नहीं होगा तो ग्रीस निकल जाएगी। तो दिस इज स्पेशल टाइप। अब यहाँ पिंटल लगता है, is a pin or bolt usually inserted into gudgeon which is a part of the pivot or hinge। यहाँ दिखाया हुआ है, तो यहाँ इसको इंसर्ट किया जाता है इसमें। तो ये गजन है और ये रडर का पार्ट है, और यहाँ पिंटल जाता है इन द रडर थ्रू द गजन। ये गजन है, ठीक है। अगर वो बैलेंस अनबैलेंस रडर है तो ये रडर पोस्ट के ऊपर लगा रहता है गजन, ठीक है। अगर वो सेमी बैलेंस है तो पार्ट होता है, और ये पिंटल बुश के थ्रू जाएगा so that it is lubricated and doesn't, क्योंकि अगर ये फंस जाएगा तो फिर ये तो मूवमेंट ही बंद हो जाएगी। so that's why you have this bush, so that lubrication भी रहे and movement भी फ्री रहे। now the rudder is supported by means of bearing pintle। bearing pintle नीचे की तरफ होता है, जो हमने पहले रडर में किया था। एक बार bearing pintle पे आपको दिखा दें फिर से। ये बेरिंग पिंटल यहाँ नीचे लगा होता है, दिस इज द बेरिंग पिंटल। लॉकिंग पिंटल, बेरिंग पिंटल, तो ये इसका नीचे वेट बेयर करता है, तो दिस इज द बेरिंग पिंटल। ये वाला लोअर बेरिंग है, अपर बेरिंग है इन बैलेंस रडर। और पिंटल, लॉकिंग पिंटल, बेरिंग पिंटल, अनबैलेंस रडर। सेमी बैलेंस में भी आपका लॉकिंग पिंटल एंड बेरिंग पिंटल होगा, जो यहाँ दिखाया हुआ, लॉकिंग पिंटल, बेरिंग पिंटल।
So rudder is supported by means of bearing pintle or lower bearing depending on the design. The lower bearing is employed on rudder is actually supported on split bearing rings fitted on the lower face of rudder and upper face of sole piece. अब ये सोल पीस आपको फिर से दिखा देते हैं. हाँ भाई, सोल पीस किस टाइप के रडर में आता है? बैलेंस, अनबैलेंस या सेमी बैलेंस, किस में आता है? चलो बताओ, फिर मैं दिखाऊंगा डायग्राम. सोल पीस किस में आता है? सेमी बैलेंस. सेमी बैलेंस में तो नीचे कुछ होता ही नहीं है, तो कहाँ से सेमी बैलेंस आएगा? बैलेंस में आएगा. अब दिखा देते हैं फिर से. ये जो नीचे आया सेक्शन, इसको सोल पीस कहते हैं. बैलेंस में नीचे आएगा. सेमी बैलेंस और अनबैलेंस में सोल पीस नहीं होता. ये देखो यहाँ कहाँ है, इसके नीचे सोल पीस है. ये डायग्राम देखो, इसके नीचे कोई सोल पीस है नहीं है. ये रडर पोस्ट पे अटका पड़ा है, यहाँ सपोर्ट है. ठीक है. अब ये वाला बैलेंस वाला है, जिसके नीचे ये एलोंगेटेड है, स्टर्न फ्रेम में भी हमने दिया था, देखा था. ये आपका सोल पीस है, कास्ट सोल पीस. सेमी बैलेंस को भी आपको दिखाते हैं. सेमी बैलेंस के नीचे कुछ है? सेमी बैलेंस तो हवा में लटका पड़ा है. इसके नीचे क्या है? कुछ नहीं है. तो किस में आया? कास्ट सोल पीस. अब किस में आया? फिर से बोलो. अभी तो दिखा दिया भाई. सर बैलेंस्ड. बैलेंस में यार, अभी तो दिखाया, 1 मिनट पहले दिखाया, फिर भूल जाते हो. 1 मिनट पहले मैं दिखाता हूँ, उसके बाद आपको पूछता हूँ, फिर याद भी रहता है. अब ये वाला कौन सा रडार है? सेमी बैलेंस. इसके नीचे कुछ है नहीं है, तो ये ध्यान रखा करो ना. आप लोग उसको ध्यान नहीं रखोगे तो फिर कैसे दिमाग में जाएगा बेटा. सेमी बैलेंस में सोल पीस नहीं है, बैलेंस में सोल पीस है, अनबैलेंस में भी सोल पीस नहीं है. अनबैलेंस में ऐसे लगा हुआ है. रडर पोस्ट ओनली इन अनबैलेंस. बैलेंस में रडर पोस्ट नहीं होता है. ये देखो, यहाँ रडर एक्सेल है, ये एक्सिस है. एक्सेल भी नहीं, ये रॉन्ग बनाया हुआ है. रडर एक्सिस होता है, टर्निंग एक्सिस ये है, एक्सेल नहीं होता. ये जो डायग्राम है ये गलत डायग्राम, इसलिए ये दिखा रहा हूँ. इसमें एक्सिस होता है और ये ऊपर कनेक्टेड है, नीचे कनेक्टेड है, बीच में नहीं कनेक्टेड है. ये टर्निंग एक्सिस है. उसका सोल पीस बैलेंस में नीचे रहेगा. और यहाँ से आपका रडर स्टॉक जा रहा है ऊपर वाया द रडर ट्रंक. ये वाला रडर स्टॉक जा रहा है ऊपर, जा रहा है स्टीयरिंग गियर में. और यहाँ देखो रडर ट्रंक है और ये रडर स्टॉक है. थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन थोड़ा सा बार बार बताने से कम दिमाग में घुसेगा. इसलिए बार बार बोलता हूँ मैं, ताकि दिमाग में घुस जाए. थोड़ा सा ऊपर से उड़ जाता है ये. शिप कंस्ट्रक्शन ऐसा है, ध्यान नहीं दोगे, थोड़ी देर के बाद पता लगोगे आपका वेवलेंथ गड़बड़ हो गया. ऐसा ही होता है क्या? शिप कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा देर ध्यान भटक गया तो पता लगा वेवलेंथ चेंज हो गया. ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है? यस सर. होता है. वेवलेंथ चेंज हो जाता है, पता लगता है कोई और चीज बोल रहा हूँ मैं, जब ध्यान अलग हो जाता है. इसलिए ध्यान दोगे ना तो सही रहेगा, क्योंकि जैसे ही आपका ध्यान भटका सब चीज उल्टी हो जाएगी, समझ नहीं आएगा. सो द लोअर बेयरिंग इज एम्प्लॉयड एंड रडर इज एक्चुअली सपोर्टेड बाय स्प्लिट बेयर. ये तो बता दिया था. अब आता है कैरियर पे. कैरियर अभी बताया था, फिर दोबारा बता रहे हैं. So rudder carrier is bearing taking the weight of the rudder on grease lubricated thrust face. Rudder stroke is located by journal also grease lubricated and इसके नीचे डबलर प्लेट और स्टील चौक है, जो आपको डायग्राम में दिखाया था. Base of the carrier bearing is located by wedge shaped side chock welded to deck stiffening. ये आपको दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूँ. ये यहाँ स्टिफनिंग की गई है. ये इतना डायग्राम साफ नहीं है, ये डायग्राम बेटर है. तो यहाँ स्टिफनिंग की जाती है, डबलर प्लेट है और यहाँ चॉक्स लगाए जाते हैं.
सपोर्ट करने के लिए पूरी असेंबली को। ये रडर कैरियर की पिंटल है, रडर कैरियर पूरा बना हुआ। अब आता है रडर ट्रंक। तो रडर ट्रंक, अब जैसे हम सोचते हैं ट्रंक में सामान रखते हैं, भाई यहाँ कोई सामान रखते ही नहीं है, यहाँ से रडर स्टॉक पास होता है। तो रडर ट्रंक बेसिकली ये बनाया गया है, ये रडर ट्रंक है जिसके थ्रू आपका रडर स्टॉक जाता है। ये डायग्राम भी करने की जरूरत नहीं है, ये इंजीनियर्स का डायग्राम है। तो ये आपका रडर स्टॉक जा रहा है, यहाँ ग्लैंड लगता है विच इज वाटर टाइट सो दैट वाटर डजंट एंटर द इंजन रूम or steering flat. So rudder trunk is the space between carrier bearing and the bush of rudder stock of the ship, and the space is located just above the rudder. So it is found in the stern for the entry of rudder stock into the steering gear room. The lower part of the rudder trunk is open to sea, but is usually provided with inspection manual for viewing. क्योंकि यहाँ मैनुअल होता है कि कहीं से पानी वानी तो ना आ जाए, इसलिए ध्यान रखोगे कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए। So the trunking above this is constructed to be watertight, penetrated only by a rudder stock, so that the water doesn't enter the steering flat. अब यहाँ watertight gland लगा होता है rudder stock पे, so that water doesn't enter the steering flat. ये वही है, रडर का स्टॉक पास हो रहा है, तो ये रडर कैरियर। दिस इज द वाटर टाइट ग्लैंड, और इस चाबी से उसको टाइट किया जाता है यहाँ। नाउ वाटर टाइट ग्लैंड क्यों लगाया जाता है? So that is a gland around rudder stroke to prevent water entry into the hull. So this needs to be checked on regular basis. इसकी पैकिंग वैकिंग चेंज करनी चाहिए, जब आप ड्राई डॉक में हो तो उसकी पैकिंग चेंज करानी चाहिए ग्लैंड की। So the arrangement provides an access to the greater length of the rudder stock, removes the need for watertight construction of a carrier bearing and reduce the unsupported length of stock. क्योंकि हमने उसको उधर ही वाटरटाइट बना दिया, तो लंबे रडर स्टॉक की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं, तो एक वीडियो साथ, अभी आपका टाइम है 15 मिनट है, तो इसको देखना है कि प्रोपेलर चालू करें। अभी प्रोपेलर शुरू करेंगे, कोई वीडियो देखना है? सर वीडियो दिखा दीजिए। वीडियो दिखा देते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा नॉलेज भी गड़बड़ हो जाती है। कई बार क्या है, कैपेसिटी के ऊपर चला जाता है, फिर आपको समझना बंद हो जाता है।